let's get started. In this one, we are going to discuss about ASA 299, that is nothing but the joint audit of financial statement. So what basically joint audit is related all about, and ASA 299 lays down the principle for effective conduct of joint audit to achieve the overall objective of the auditor as laid down in ASA 200. तो हम क्या बोलते हैं ऐसे 299 जो है जो कि जॉइंट ऑडिट से रिलेट करता है दैट हाउ विल यू डू द जॉइंट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ऐसे 299 लेज डाउन द प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव कंडक्ट, हाउ देयर विल बी द इफेक्टिव कंडक्ट, कैसे इफेक्टिवली तरीके से जॉइंट ऑडिट होगा टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑफ द, ताकि हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑडिटर के वो अचीव कर पाए as laid down in SA 200. It deals with the special consideration in carrying out audit by joint auditor. ये deal करता है what are the special considerations क्या है in carrying out the audit by joint auditor. However, it does not deal with relationship between a principal auditor who is appointed to report on the financial statement of an entity and another auditor who is appointed to report on the financial statement of one or more components, division, branches, subsidiary, joint venture, associate, other entity included in the financial statement of the entity. तो हम क्या बोलते हैं however it does not deal with the relationship between, ये डील नहीं करता है that whatever is the relationship between the, what is the relationship between the principal auditor के बीच की relationship क्या है, who is appointed to report on the financial, ये जो हम जॉइंट ऑडिटर वाला जो प्रोविजन पढ़ रहे कि जॉइंट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये उससे डील नहीं करता है कि जो प्रिंसिपल ऑडिटर जिसे अपॉइंट किया गया है जो रिपोर्ट देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी एंड अनदर ऑडिटर हु इज अपॉइंटेड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ one and more component, division, branches, subsidiary, joint venture, associate, other entity included in the financial statement of the auditor. यानी कि जॉइंट ऑडिटर अलग है और हमारा जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो अलग है जिसे अपॉइंट किया गया है कि वो रिपोर्ट कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी, और दूसरा ऑडिटर जिसे अपॉइंट किया गया है टू रिपोर्ट कि वो कैसे रिपोर्ट करेगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट पे, डिवीजन पे, ब्रांचेस पे, सब्सिडरी पे, जॉइंट वेंचर पे, एसोसिएट पर, अदर एंटिटी पे जो कि इंक्लूडेड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी. उसके बाद व्हाट इज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज द जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होता है बेसिकली अ जॉइंट ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी बाय टू और मोर ऑडिटर अपॉइंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट. जॉइंट ऑडिट में क्या होता है, आइडियली जॉइंट ऑडिट में क्या होता है दैट इज A joint audit is an audit of financial statement. यहाँ पे भी financial statement की ही audit की जाएगी of an entity by two or more auditors. दो या दो से ज्यादा, दो और दो से ज्यादा auditors के द्वारा audit की जाएगी by two or more auditors appointed with the objective of issuing the audit report. जिन्हें appoint किया गया है कि वो issue करेंगे audit report. Such auditor are described as joint auditor. उन्हें हम describe करते हैं as what? As the joint auditor. The practice of appointing more than one auditor to conduct the audit of large entity has been in vogue for a long time, sometimes voluntarily by the shareholder and sometimes due to the requirement of laws or regulation. जो practice है appointing, हम क्या बोलते हैं that जो practice है appointing more than one auditor, जो practice है joint audit में क्या होता है basically there will what, that is the जो practice of appointing more than one auditor, जहाँ पे जो प्रैक्टिस है कि आप अपॉइंट किया जाएगा मोर देन वन ऑडिटर, मोर देन एक से ज्यादा ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ लार्ज एंटिटीज, कि कैसे आप कंडक्ट करोगे ऑडिट ऑफ लार्ज एंटिटी हैज बीन इन वोक फॉर द लॉन्ग टाइम, sometime voluntary by the shareholder, sometime due to the requirement of laws and regulation. sometime क्या होता है voluntary होता है by the shareholder और sometime होता है due to the requirement of laws and regulation. Such auditor known as joint auditor conduct the audit jointly and the report on the financial statement of the entity. तो जो प्रैक्टिस है ऑफ अपॉइंटिंग मोर देन वन ऑडिटर, जो प्रैक्टिस है कि अपॉइंटमेंट होगा एक से ज्यादा ऑडिटर का टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ लार्ज एंटिटी, की कैसे आप कंडक्ट करोगे द ऑडिट ऑफ लार्ज एंटिटी हैज बीन इन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो प्रैक्टिस है वेयर यू आर अपॉइंटिंग मोर देन वन ऑडिटर, आपको एक से ज्यादा ऑडिटर को अपॉइंट करना है सो दैट द कंडक्ट ऑफ ऑडिट of the large entity has been in work for the long time. Sometimes voluntary होगा by the shareholder या फिर sometimes होगा due to the requirement of laws and regulation के requirements की accordance में. Such auditor known as, उसे बोला जाता है as a joint auditor, conduct the audit jointly, conduct कीजिए audit को jointly and report कीजिए on the financial statement of the entity. तो what you need to do is to conduct कीजिए the audit को jointly and report कीजिए on the financial statement of the entity.
उसके बाद आता है हमारा फॉर एग्जांपल सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 जो है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट द मेंबर ऑफ अ कंपनी में रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर। मतलब ये जो है सारा रीड एंड मूव कैटेगरी वाला पार्ट ही है। दिस वी नीड टू thoroughly read the things, we after that we understand and then proceed because learning वाला पार्ट आगे आएगा under the joint auditor, that as per SA 299 how there will be the joint audit of the financial statement का joint audit क्या होगा and all such thing. For example, section 139 subsection 3 जो है of Companies Act 2013 provides that the member of a company may resolve to provide that the audit shall be conducted by more than one auditor, की जो audit है that shall be conducted होनी चाहिए by more than one auditor, के more than एक auditor से ज्यादा। उसके बाद हम डील करते हैं दैट व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव इन अकॉर्डेंस विद एसए 299। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इन अकॉर्डेंस विद एसए 299? तो ऑब्जेक्टिव इन अकॉर्डेंस विद एसए 299 आर एस अंडर to lay down the broad principle for the joint auditor in conducting the joint audit। आपको क्या करना है, what you need to do is to lay down the broad principle, you need to lay down the broad principle for the joint auditors, what will be the objective, कैसे आप objectives को achieve करोगे in accordance with SA 299, that is you need to lay down the broad principle for the joint auditor in conducting the joint audit to provide a uniform approach to the process of joint audit। आपको क्या करना है, आपको provide करना है uniform approach to the process of joint audit। you need to provide a uniform approach। बताइए that what is the process of joint audit, to identify the distinct areas of work and coverage thereof by each joint auditor। आपको identify करना है जो भी distinct areas है work के coverage thereof by each joint auditor। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से डिस्टिंक्ट एरियाज है, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क और कवरेज क्या है। तो व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिस्ट्रिक्ट एरिया, दूसरे दूसरे एरिया क्या है, कवरेज क्या है thereof by each joint auditor। उसके बाद to identify individual responsibility and joint responsibility। आपको आइडेंटिफाई करना है individual responsibilities को, joint responsibility क्या है joint auditor in relation to the audit। आपको मतलब when you are doing the joint audit इसका मतलब ये है कि सारा जो काम है वो जॉइंटली होने वाला है, पर जो काम है तो पर्टिकुलरली डिवाइड हो जाएगा। तो आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दैट यू नीड टू फुलफिल। तो जॉइंट ऑडिट में ऑब्जेक्टिव्स जो एक बन जाता है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाट इज योर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाट इज योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी, व्हाट इज योर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर डूइंग द जॉइंट ऑडिट। तो यू work is divided to what is jointly where you are responsible of the joint audit in auditors in relation to audit। you need to identify what are the distinct areas of work, मतलब different different areas क्या, you need to identify कि distinct areas क्या है work के and coverage उसका कवरेज क्या होने वाला है देयर ऑफ बाय ईच ऑडिटर। तो हम क्या बोलते हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई सबसे पहले व्हाट इज योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाट इज योर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑफ द जॉइंट ऑडिटर इन रिलेशन टू जॉइंट ऑडिट। यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज योर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द जॉइंट ऑडिट। नंबर टू, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिस्टिंक्ट एरियाज एंड कवरेज। डिस्टिंक्ट एरियाज क्या है, कवरेज क्या है देयर ऑफ बाय ईच जॉइंट ऑडिटर। फिर आपको प्रोवाइड करना यूनिफॉर्म अप्रोच टू द प्रोसेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। यू नीड टू प्रोवाइड व्हाट विल बी द योर यूनिफॉर्म अप्रोच, एक जैसी अप्रोच जो रहने वाली टू द प्रोसेस ऑफ जॉइंट ऑडिट में। व्हाट विल बी योर यूनिफॉर्म अप्रोच क्या रहने वाली टू, मतलब आप जॉइंट ऑडिट कर रहे हो तो आपको एक यूनिफॉर्म चीज तो आपने डिसाइड की होगी कि द थिंग्स विल बी गो इन दैट डायरेक्शन। तो व्हाट विल बी द यूनिफॉर्म अप्रोच क्या होगी इन रिलेशन टू जॉइंट ऑडिट। you need to lay down what are the broad principle for joint auditor in conducting। so you need to lay down that what will be the broad principle kya hoga in conducting the joint audit। so there we can write as well that short mein likh lete hain in, agar aur kuch nahi aaya to in relation to the joint audit aise likh denge। तो first thing that is what are the broad principles kya रहने वाले हैं, what will be the broad principle kya रहने वाले हैं, what will be the ब्रॉड प्रिंसिपल्स जिन्हें हम फॉलो करने वाले हैं, व्हाट विल बी दी यूनिफॉर्म अप्रोचेस, यूनिफॉर्म अप्रोच क्या रहने वाली है। उसके बाद हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी सेपरेट हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है डिस्टिंक्ट एरियाज, डिस्टिंक्ट एरियाज एंड कवरेज क्या है, डिस्टिंक्ट एरियाज एंड कवरेज क्या है। तो हमने आइडली चार चीजों में उसे कैटेगराइज कर दिया। नाउ मूविंग फर्दर, दैट इज ऑडिट प्लानिंग क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, हाउ देयर विल बी द एलोकेशन ऑफ वर्क कैसे होगा, द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट। जो एंगेजमेंट पार्टनर्स होते हैं, जो अदर की मेंबर्स होते हैं एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर, वो इन्वॉल्व होंगे इन प्लानिंग द ऑडिट। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी क्या बताएगी, एसटीडी बताती है, स्ट्रैटेजी स्कोप बताती है, टाइम बताती है, डायरेक्शन बताती है ऑडिट का, जो कि गाइड करती है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान शैल बी एस्टेब्लिश जॉइंटली। तो हम क्या बोलते हैं, जो एंगेजमेंट पार्टनर्स होते हैं और जो अदर की मेंबर्स होते हैं एंगेजमेंट टीम के, जो एंगेजमेंट पार्टनर्स होते हैं, अदर की मेंबर्स होते हैं एंगेजमेंट टीम के फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिट, वो इन्वॉल्व होती है प्लानिंग दी ऑडिट में। ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या, यू नीड टू, आप बताइए व्हाट विल बी योर स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन क्या होगा ऑडिट का, जो कि गाइड करेगा द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान दैट विल बी एस्टेब्लिश जॉइंटली। प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट के स्टार्ट होने से पहले, प्रायर द कमेंसमेंट, द जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड डेवलप द जॉइंट ऑडिट प्लान। तो ऑडिट के स्टार्ट होने से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट, आप डिस्कस कर लीजिए, डेवलप कर लीजिए एक जॉइंट ऑडिट प्लान को। इन डेवलपिंग द जॉइंट ऑडिट प्लान, जॉइंट ऑडिटर शैल, जब आप डेवलप कर रहे होंगे जॉइंट ऑडिट प्लान को, तो जॉइंट ऑडिटर क्या करेगा, तो हम क्या बोलते हैं, प्रायर टू द कमेंसमेंट, जब आप जॉइंट ऑडिट करने वाले हो तो उससे पहले आप प्रायर टू दी ऑडिट कमेंसमेंट आप डिस्कस कर लीजिए, डेवलप कर लीजिए जॉइंट ऑडिट प्लान को। इन डेवलपिंग द जॉइंट ऑडिट प्लान, द जॉइंट ऑडिटर शैल, जब आप व्हेन यू आर डेवलपिंग द जॉइंट ऑडिट प्लान, जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा व्हाट आर द डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज इन कॉमन ऑडिट एरिया, कौन से डिवीजन है ऑडिट एरियाज के, कौन से ऐसे, व्हाट आर, आइडेंटिफाई कर लेगा what are the division of audit areas and what are the common audit area among the joint auditor that define the scope of the work of each joint auditor। वो आइडेंटिफाई कर लेगा व्हाट आर द डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया, कौन से, वो आइडेंटिफाई कर लेगा व्हाट आर द division of audit areas, what are the common audit area amongst the joint auditor that define the scope of the work of each joint auditor। where joint auditor are appointed, they should by mutual discussion करेंगे, वो डिवाइड करेंगे ऑडिट वर्क को खुद से आपस में। देन उसके बाद डिवीजन होगा वर्क का, वुड यूजुअली बी इन टर्म्स ऑफ ऑडिट ऑफ आइडेंटिफाइबल यूनिट और स्पेसिफाइड एरिया। In some cases, due to the nature of business of the entity under audit, such a division of work may not be possible. In such a situation, the division of work may be with reference to the item of assets or liability, income or expenditure. Certain areas of work, owing to their importance or owing to the nature of work involved, would often not be divided and would be covered by all the joint auditors। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर उसे शॉर्ट में समराइज किया जाए कि डिस्टिंक्ट एरियाज, कवरेज, वापस में जॉइंट ऑडिट जो आपस में है वर्क को वो डिवाइड कर लेंगे, ये पॉइंट में वन में ये डिस्कस किया। उसके बाद बी सी डी ई वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वन का हम एज अ समरी हमसे लर्न कर लेंगे। तो सबसे पहले बी सी डी ई लर्न कर लेते हैं हम, कि प्रायर टू कमेंसमेंट, मतलब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दी ऑडिट, जब आपने जॉइंट ऑडिट को कमेंस नहीं किया उससे पहले ऑडिटर जो है वो डिस्कस करेगा, डेवलप करेगा जॉइंट ऑडिट प्लान को। ऑडिटर जो है वो डिस्कस करेगा, डेवलप करेगा जॉइंट ऑडिट प्लान को। जब वो डेवलप करेगा जॉइंट ऑडिट प्लान, तो ऑडिटर जो है वो ये सारी चीजें को कंसिडर करेगा। तो बी सी डी ई हम लर्न कर लेते हैं और ए वाला हम शॉर्ट समराइज कर लेंगे इसको। तो हमें ऑब्जेक्टिव तो हमें पता है कि ब्रॉड प्रिंसिपल होना चाहिए, व्हाट आर द डिस्टिंक्ट एरियाज क्या है वर्क एंड कवरेज, उसके अलावा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और क्या है, और यूनिफॉर्म अप्रोचेस क्या है। तो चार चार ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमें यहाँ पता चलता है कि डिस्टिंक्ट एरियाज क्या है, वर्क एंड कवरेज, ब्रॉड प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिफॉर्म अप्रोच क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब आपको एसरटेन करना है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। आप एसरटेन करने की कोशिश कीजिए, आपको एसरटेन करना होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट,
आपको एसेटेन करना है क्या, आपको एसेटेन करना है व्हाट विल बी द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। आप एसेटेन कीजिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंगेजमेंट के, और एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। आपको क्या करना होगा, आपको एसेटेन करना होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट। आप क्या कीजिए, आप एसेटेन करने की कोशिश कीजिए, आप एसेटेन करने की कोशिश कीजिए कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है एंगेजमेंट के, ताकि आप प्लान कर पाओ टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड द नेचर, व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। आपको एसेटेन करना होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट। आपको क्या करना होगा, आपको एसेटेन करने की कोशिश कीजिए कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा एंगेजमेंट का, टू प्लान दी टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। आपको एसेटेन करना है दैट, आपको क्या करना होगा, आपको एसेटेन करना होगा क्या, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा एंगेजमेंट का, टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ताकि आप प्लान कर पाओ द टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या है एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड क्या है। तो आपको एसेटेन करना होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट। आपको क्या करना होगा, आपको एसेटेन करना होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ द एंगेजमेंट, कैसे आप प्लान करोगे द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। उसके बाद कंसिडर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर कौन से सब फैक्टर्स एंड देयर प्रोफेशनल जजमेंट जो कि सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। आप कंसिडर कीजिए कौन से रिजल्ट है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की वेर एप्लीकेबल वेदर द नॉलेज गेन और अदर सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म अर्लियर बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं। एसेटेन कीजिए नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सटेंड क्या है, रिसोर्सेज जो कि नेसेसरी है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। आपको एसेटेन करने की कोशिश करनी है, आपको एसेटेन करना है नेचर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, व्हाट विल बी द एनटीई। आपको आपको क्या करना है, आपको एसेटेन करने की कोशिश करनी है, यू नीड टू एसेटेन दैट व्हाट विल बी द एंटी नेचर टाइमिंग एक्सटेंड क्या होगा, रिसोर्सेज जो कि नेसेसरी है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। तो प्रायर ऑडिट से पहले ये सारी चीजें होगी, आप एसेटेन करोगे नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सटेंड क्या है ऑफ एक्सटेंड क्या है ऑफ रिसोर्सेज का जो कि नेसेसरी है, नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सटेंड क्या है रिसोर्सेज का जो कि नेसेसरी है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। व्हाट इज दी नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सटेंड क्या है ऑफ रिसोर्सेज का, एक्सटेंड क्या है रिसोर्सेज का जो कि नेसेसरी है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। यू नीड टू डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन करना है कि नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सटेंड क्या है रिसोर्सेज का जो कि नेसेसरी है, नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सटेंड क्या है। आपको डिटरमाइन करना होगा कि नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सटेंड क्या है रिसोर्सेज का जो कि नेसेसरी है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। आप कंसिडर करोगे रिजल्ट्स क्या होंगे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की जहां एप्लीकेबल है, क्या जो नॉलेज गेन किया है आपने और अदर और सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म अर्लियर बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी, क्या वो रेलेवेंट है। आप कंसिडर कीजिए क्या जो रिजल्ट्स है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के, आप कंसिडर कीजिए क्या जो रिजल्ट्स है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के जो कि एप्लीकेबल है, जो भी आपने नॉलेज गेन किया है और अदर सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म अर्लियर बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी, क्या वो रेलेवेंट है। आप कंसिडर कीजिए कि रिजल्ट क्या है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के। सबसे पहले आपको एसेटेन करना है नेचर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा रिसोर्सेज का जो कि नेसेसरी है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आप ये बताइए क्या रिजल्ट्स क्या है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के जो कि एप्लीकेबल है, जहाँ पे भी वो एप्लीकेबल होती है, क्या जो नॉलेज गेन किया है दूसरी या फिर किसी सिमिलर एंगेजमेंट जो आपने परफॉर्म की थी अर्लियर बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है। आप बताइए कि जो रिजल्ट है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के जो भी एप्लीकेबल है, जो भी आपने नॉलेज गेन किया है दूसरी या फिर किसी सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म अर्लियर बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है। आप कंसिडर कीजिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर्स कौन से ऐसे फैक्टर्स है दैट इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट क्या वो सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट।
आप कंसिडर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, आपको कंसिडर करना है, कम्युनिकेट करना है, आपको कंसिडर करना है, कम्युनिकेट करना है अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर्स। क्या जो फैक्टर है इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट क्या वो सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। आपको कंसिडर करने की कोशिश करनी है, आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है, आपको कंसिडर करने की कोशिश करनी है, आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है कि जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स है क्या जो फैक्टर्स है इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट क्या वो सिग्निफिकेंट है, क्या जो भी फैक्टर्स है प्रोफेशनल जो भी फैक्टर्स है इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट क्या वो सिग्निफिकेंट है, क्या जो भी प्रोफेशनल जजमेंट के जो फैक्टर्स है क्या वो सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। आप कंसिडर करने की कोशिश कीजिए, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए अमंग ऑल द जॉइंट ऑडिटर। आप कंसिडर करने की कोशिश कीजिए, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए अमंग ऑल द जॉइंट ऑडिटर जो भी फैक्टर है इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट क्या वो सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। आप एसरटेन करने की कोशिश कीजिए क्या जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। आप क्या करने की कोशिश कीजिए, आप एसरटेन करने की कोशिश कीजिए कि जो भी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ द एंगेजमेंट व्हाट यू नीड टू डू, आप क्या कीजिए एसरटेन कीजिए क्या जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है एंगेजमेंट के टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ द प्लान क्या होगा प्लानिंग द प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। तो ये जो है कि प्रायर द कमेंसमेंट ऑफ जॉइंट ऑडिट हम ये सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे, नेचर क्या होगा, टाइम क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, रिसोर्सेज का जो कि परफॉर्म नेसेसरी है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। यू नीड टू आपको एसरटेन करना है नेचर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, यू नीड टू एसरटेन दैट व्हाट विल बी द नेचर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, रिसोर्सेज का व्हाट विल बी द नेचर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, रिसोर्सेज का जो कि नेसेसरी है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। आप कंसिडर कीजिए रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट कि जो भी हमने नॉलेज गेन किया है या तो किसी प्रीवियस अदर या सिमिलर जो भी मतलब आपने या तो नॉलेज या एक्सपीरियंस गेन किया होगा अदर या फिर सिमिलर एंगेजमेंट्स में जो भी परफॉर्म किए बाय रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी, जो भी रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर है फॉर द एंटिटी क्या वो रेलेवेंट है। कंसिडर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर कौन से ऐसे फैक्टर्स है। आप कम्युनिकेट आप कंसिडर करने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, आप कंसिडर करने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए अमंग ऑल द जॉइंट ऑडिटर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट जो कि सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। आप कंसिडर करने की कोशिश कीजिए, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, आप कंसिडर करने की कोशिश कीजिए, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए अमंग ऑल द जॉइंट ऑडिटर कौन से ऐसे फैक्टर है इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट वो जो कि सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। कंसिडर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए सारे जॉइंट ऑडिटर को मिलके कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि प्रोफेशनल जजमेंट में सिग्निफिकेंट मैटर है जो कि ऑडिट के लिए रेलेवेंट होंगे। एसरटेन कीजिए कौन से ऐसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। तो ऐसे तो हमारा सर चकरा जाएगा एग्जैक्ट पॉइंट याद करते करते करते। तो अभी तक मेरे को ये समझ आया कि व्हाट विल बी द नेचर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, रिसोर्सेज का टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। उसके बाद मुझे एक और चीज ये समझ आई है कि हमें क्या करना है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट्स और जो हमने अदर या सिमिलर ऑडिट जो की है जो उससे एक्सपीरियंस गेन किया है और जो रेलेवेंट थे तो उसे देखिए। उसके अलावा वन मोर पॉइंट दैट इज इन माय माइंड कि आप कम्युनिकेशन आप प्लान कीजिए द टाइमिंग एंड कम्युनिकेट कीजिए वेर एवर रिक्वायर्ड। उसके अलावा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है एंगेजमेंट के, प्लान एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर इसमें भी यही है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कीजिए दैट व्हाट आर द डिवीजन ऑफ एरियाज एंड कॉमन मतलब कौन से डिवीजन है, कौन से कॉमन एरियाज है, कौन से दूसरे है डिस्टिंक्ट एरियाज एंड कवरेज मतलब कौन से कॉमन एरियाज है वेयर you are doing the works jointly amongst the joint auditor that define the scope of work of each joint auditor. When joint auditor are appointed they should by mutual discussion divide कीजिए the audit work among themselves. The division of work would usually in terms of audit of identifiable unit or specified area. In some cases, due to the nature of business of the entity under audit, such a division of work may not be possible. In such a situation, the division of work may be with reference to item of assets or liability or income or expenditure. Certain areas of work owing to their importance or owing to the nature of work involved would often not be divided, would be covered by all the joint auditors. ये हमारा हो जाता है जॉइंट ऑडिट में। हमें जॉइंट ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव पता है और प्रायर टू
कमेंसमेंट ऑफ जॉइंट ऑडिट क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो हमें ऑलमोस्ट पता है, मतलब एटलीस्ट वी कैन राइट टू द एक्सटेंट, मतलब 70-75% हम मॉड्यूल जितना लिख लेंगे वो भी इनफ है। एग्जैक्ट लाइन तो रट नहीं सकते, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनी बड़ी। उसके बाद हम आते हैं, at this stage risk of material misstatement need to be considered and assessed by each of the joint auditor and shall be communicated to other joint auditors and documented whether pertaining to the overall financial statement level or to the area of allocation among the other joint auditor। तो जॉइंट ऑडिटर शेल डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे व्हाट विल बी द नेचर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, ऑडिट प्रोसीजर फॉर कॉमन एंड स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज ऑफ ऑडिट टू बी परफॉर्म बाय ईच ऑफ द joint auditor and the same shall be communicated to those charged with governance। joint auditor जो है वो obtain करेंगे common engagement letter and common management representation letter। जो जॉइंट ऑडिटर है वो ऑब्टेन करेंगे कॉमन एंगेजमेंट लैटर को, कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लैटर को। जो जॉइंट ऑडिटर है वो ऑब्टेन करेंगे दैट व्हाट विल बी द कॉमन एंगेजमेंट लैटर। जो जॉइंट ऑडिटर है वो क्या करने की कोशिश करेंगे, वो ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे एंगेजमेंट लैटर क्या होगा, कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लैटर क्या होगा। जो जॉइंट ऑडिटर है वो ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे कॉमन एंगेजमेंट लैटर क्या होगा, कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लैटर क्या होगा। After identification and allocation of work among the joint auditor, जो work allocation document shall be sign किया जाएगा by the joint auditor and the same shall be communicated to those charged with the governance of the entity। तो हम क्या बोलते हैं कि जो joint auditor है वो obtain करेंगे common engagement letter को। जो जॉइंट ऑडिटर है हम क्या बोलते हैं, जो जॉइंट ऑडिटर है वो ऑब्टेन करेंगे कॉमन एंगेजमेंट लैटर को और कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लैटर को। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द जॉइंट ऑडिटर, द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड बाय द जॉइंट ऑडिटर एंड द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ऑफ द एलोकेशन ऑफ वर्क हेल्प करता है इन अवॉइडिंग एनी डिस्प्यूट और कंफ्यूजन व्हिच मे अराइज अमंग द जॉइंट ऑडिटर रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट बाय देम। Further, the communication of allocation of work to the entity helps कहता है in avoiding any dispute or confusion which may arise between the entity and the joint auditor। तो communication करना is a better approach because वो confusion को eliminate करेगा, ज़्यादा discussions होंगे तो। Responsibility and coordination क्या होता है among joint auditor, the audit process involve obtaining and evaluating the information and explanation from the management। This responsibility is shared by all the joint auditor unless they agree upon a specific pattern of distribution of this responsibility। In respect of audit work divided among the joint auditor, each auditor shall be responsible only for the work allocated to such a joint auditor, including the proper execution of audit procedures। In cases where specific division joints or units are allocated to different joint auditor, it is the separate and specific responsibility of each joint auditor to obtain information and explanation from the management in respect of such a division, zones, units, and used to evaluate the information and explanation so obtained by the said joint auditor। The joint auditor shall have the proper coordination होगा and rationality होगा wherever required। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ऑल द जॉइंट ऑडिटर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जॉइंटली और सेवरली। सारे के सारे हम क्या बोलते हैं, सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स जो है, सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स जो है वो जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किन चीज़ों के लिए। सारे के सारे जो जॉइंट ऑडिटर है वो सेवरली और जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किन चीज़ों के लिए, वो जॉइंटली और सेवरली किस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर एंड इज कैरीड आउट बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर। अब हम यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस करें कि सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स है वो जॉइंटली किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो ऑडिट वर्क जो वो जॉइंटली कर रहे हैं उनके लिए, अगर वो सेपरेट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बट व्हेन दे आर परफॉर्मिंग दैट अ पर्टिकुलर टास्क जॉइंटली तो वो सारे के सारे जो है वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है। तो जो ऑडिट वर्क है विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर, जो ऑडिट वर्क जो डिवाइड नहीं हुआ उसके लिए वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद द डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर अंडर द ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज कंसर्निंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर। डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर अंडर द ऑडिट प्लानिंग, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं जॉइंट ऑडिटर के द्वारा अंडर द ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज कंसर्निंग द नेचर, जो कॉमन ऑडिट एरियाज है उसके रिगार्ड में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसके रिगार्ड में जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट जो है ऑडिट प्रोसीजर्स के कि उसे परफॉर्म की जाएगी बाय ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर, तो वो हमें देखना है। उसके बाद मैटर विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर बाय एनी ऑफ देम एंड विच आर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर। मैटर विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय एनी ऑफ देम
मैटर जिसे नोटिस में लिया जा रहा है जॉइंट ऑडिटर के द्वारा बाय एनी ऑफ देम एंड ऑन विच इज एन एग्रीमेंट हो there is an agreement among the joint auditor. Examine that the financial statement of the entity comply with the requirement of relevant statutes. Examine कीजिए कि जो financial statement है entity का वो comply कर रहा है, जो भी financial statement है entity के वो comply कर रहे हैं with the requirement of the relevant statute. Examine करने की कोशिश कीजिए कि जो financial statements है entity के कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंटिटी के वो कंप्लाई कर रहे हैं विद द रेलेवेंट स्टैट्यूट के साथ. आप एग्जामिन करने की कोशिश कीजिए क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंटिटी के क्या वो कंप्लायंस कर रहे हैं रेलेवेंट स्टैट्यूट्स का. उसके बाद आप क्या करें, प्रेजेंट कीजिए डिस्क्लोज कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. आप प्रेजेंट कीजिए डिस्क्लोज कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, प्रेजेंटेशन कीजिए डिस्क्लोजर कीजिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एज रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड है बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. आपको प्रेजेंटेशन देना है, डिस्क्लोजर देना है, आपको प्रेजेंटेशन देना है, डिस्क्लोजर देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय, जो भी रिक्वायर्ड है बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. आप प्रेजेंटेशन दीजिए, डिस्क्लोजर दीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी रिक्वायर्ड है बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. इंश्योर कीजिए कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कंप्लाई करेगा रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड अदर रेलेवेंट प्रोनाउंसमेंट इशू बाय द आईसीएआई. इंश्योर कीजिए कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कंप्लाई करे रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट, मतलब कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस एंड अदर रेलेवेंट प्रोनाउंसमेंट्स. एक और एडिशनल वन थी अदर प्रोनाउंसमेंट बाय से जो भी है उसको भी कंप्लाई करें. तो हम अगर कौन सा अगर ये आ जाता है क्वेश्चन में कि कहाँ पे जो जॉइंट ऑडिटर है वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि वो कंप्लायंस कर रहे हैं सारी चीज़ों का विद दी, कंप्लायंस कर रहे हैं विद ऑल द स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को, प्रोनाउंसमेंट बाय आईसीए. ठीक है, एक तो हम ये लिख सकते हैं. उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि जहाँ पे जो वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क. तो सारे ऑडिटर जो है वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है. तो वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड इन टू इंडिविजुअल वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है. उसके अलावा हम ये बता सकते हैं कि जो हम एग्जामिनिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लाई करिए रेलेवेंट स्टैट्यूट्स के साथ. ऑडिट रिपोर्ट, दो पॉइंट है यहाँ पे. एक तो ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई कर रही है, हम क्या बोलते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई कर रही है सारे प्रोफेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रही है. तो हम दो पॉइंट यहाँ पे इजीली ड्राफ्ट कर सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई करिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करिए. जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हुआ है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल एफआरएफ. जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग हुआ है. जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, हम क्या बोलते हैं, जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हुआ है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हुआ है. जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हुआ है, हम क्या बोलेंगे कि जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हुआ है वो एज पर दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हुआ है, तो भी हम यही बोलेंगे. तो हमने यहाँ से दो चार चीज़ें सीख ली है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कंप्लाई कर रही लीगल स्टैट्यूटरी कॉम्प्लीट, मतलब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स और उन सब के साथ. तो हम क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कंप्लाई कर रही है. उसके बाद हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रही है. उसके अलावा हम एक और पॉइंट ये बोल सकते हैं कि जो ऑडिट वर्क जो कि डिवाइड नहीं किया है तो वो उसके लिए जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है. उसके अलावा हम ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करिए एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग. फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पॉइंट अलग है, ऑडिट रिपोर्ट वाला पॉइंट अलग है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सॉरी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर जो हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ. तो तीन पॉइंट यहाँ हो गए. उसके बाद एक पॉइंट वो हो गया कि वो जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल है जो कि डिवाइड नहीं हुआ. उसके अलावा जो मैटर विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय एनी ऑफ देम ऑन विच देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द देयर इज एन एग्रीमेंट. जो मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ, जो मैटर्स और जॉइंट ऑडिटर को उनकी ध्यान में लाए गए हैं
by any of them and on which there is an agreement कि उस पर कोई agreement हुआ है, कोई ऐसे matters जो कि brought to the notice of the joint auditor और agreement हुआ हो और among the joint auditors, उसके लिए भी वो responsible है. Decision taken by the joint auditor under the audit planning in respect of common audit areas, जो कि common audit areas के ND देखो उसका procedure perform, तो common audit areas क्या है, कॉमन ऑडिट एरियाज क्या है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कॉमन ऑडिट एरियाज क्या है, फिर उसका नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट देखिए, प्रोसीजर्स देखिए जो कि आपको परफॉर्म करने हैं नॉट, और ऑडिट वर्क जो कि डिवाइड नहीं किया है अमंग द जॉइंट ऑडिटर इज कैरिड आउट बाय, ऑडिट वर्क जो कि डिवाइड नहीं किया गया है अमंग द जॉइंट ऑडिटर कैरिड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर. तो फाइनली ऑलमोस्ट ये सारी चीजें हैं. उसके अलावा मतलब नाउ वी कैन ड्राफ्ट आवर आंसर. ड्राफ्ट तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं और किसी ना किसी पॉइंट पर जाके. सारा रिटेनिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हमें मेन मेन पॉइंट पता चल गया कि हाँ ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई करिए, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करिए, हाँ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है, हाँ जो मैटर्स जो कि ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर कि उस पर एग्रीमेंट हुआ है, हाँ कि जो नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड जो है वो कॉमन ऑडिट एरियाज का और प्रोसीजर्स का वो क्या है, और जो वर्क नहीं डिवाइड किया उसके लिए जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है. तो ये सारी चीज़ें आ जाती है. तो इसमें हमने फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव पढ़ा जॉइंट ऑडिटर का, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा था, एक ये पढ़ लिया कि जॉइंट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. उसके अलावा बीच में हमने जो पढ़ा था वो था जब वो जॉइंट ऑडिट करेंगे तो उससे पहले प्रायर वो क्या चीज़ें देखेंगे, तो ऑलमोस्ट सब सेम सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. फिर उसके बाद भी और भी चीज़ें हैं अभी, इतनी सारी नहीं है बट स्टिल देयर आर सम पॉइंट्स. उसके बाद मूविंग फर्दर दैट इज वेयर इन द कोर्स ऑफ द ऑडिट, where in the course of audit a joint auditor come across matter which are relevant to the area of responsibility of other joint auditor and which deserve their attention, on which requirement disclosure or required discussion with application of judgment by other joint auditor, the said joint auditor shall communicate. कि हमने बताया था matters which notice to the bring notice to the joint auditor or other auditors के वो तो उसे बताया जाएगा क्या उस पर अटेंशन की जरूरत है, उसको कम्युनिकेट किया जाएगा द सेम टू ऑल द अदर जॉइंट ऑडिटर इन राइटिंग प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट. इट शेयर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर टू डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन करना है नेचर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा ऑडिट प्रोसीजर्स का, to be applied in relation to the areas of work allocated to the said joint auditor in the individual responsibility of each joint auditor to study and evaluate कीजिए आप what will be the prevailing system of internal control assessment of risk relating to the areas of work allocated to the said joint auditor as regard decision taken by all the joint auditor under the audit planning in respect of common audit areas concerning the nature, timing, and extent of audit procedure to be performed by each of the joint auditor. All the joint auditor responsible are only in respect of appropriateness of the decision concerning the nature, timing, and extent of audit procedure agreed upon among them. Proper execution of these audit procedure in the is the individual responsibility of joint auditor concerned. Now, अब आता है हमारा that is what will be the audit conclusion and reporting. Audit conclusion and reporting क्या होगा, the joint auditor are required to issue the common audit report. However, where the joint auditor are in disagreement with regard to the opinion or any matters to be covered by the audit report, they shall express their opinion in a separate audit report. A joint auditor is not bound by the views of majority of joint auditor regarding the opinion or matters to be covered in the audit report and shall express opinion formed by the said joint auditor in separate audit report. In case of disagreement in such a circumstances, the audit report issued by the joint auditor shall make a reference to the separate audit report issued by the joint auditor. For the separate audit report shall also make reference to the audit report issued by the other joint auditor. Such a reference shall be made under the heading the other audit, उसमें सेपरेट हेडिंग होगी द अदर ऑडिट मैटर पैरा एज पर एक्सेस 706. Each joint auditor is entitled to assume that the other joint auditor have carried out their part of the audit work and the work has actually been performed in accordance with the standards on auditing essays का compliance होके वर्क जो है वो परफॉर्म हुआ है इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर जॉइंट ऑडिटर टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय other joint auditor or perform any test in order to ascertain that whether the work has actually been performed in such a manner.
The joint auditor have brought to set a joint auditor's notice any departure from applicable financial FRF or significant observation that are relevant. अगर उन्हें कोई ऐसा matter लगता है that it should be bring to the notice to the other auditors, the significant findings अगर कुछ हुई है, significant observation that are relevant है to the responsibility noticed in the course of audit, वो दूसरे auditors को भी बता देंगे. Where financial statement of division branch are audited by one of the joint auditor, the other auditor are entitled to proceed on the basis that such a financial statement comply with all the legal and regulatory requirement and present a true and fair view of the state of affairs of the result of the operation of the division and the branch concerned. Before finalizing their audit report, the joint auditor discuss करेगा, communicate करेगा, finalizing before the finalizing audit report को finalize करने से पहले, before finalizing their audit report, joint auditor जो है वो discuss करने की कोशिश करेगा, communicate करने की कोशिश करेगा. Before finalizing their audit report को finalize करने से पहले जो joint auditor है वो discuss करने की कोशिश करेगा, communicate करने की कोशिश करेगा with each of their respective conclusion that would form the content of the audit report. Communication with कैसे communication होगा with those charged with governance. When the joint auditor expect to modify the opinion in the auditor's report, the joint auditor shall communicate करने की कोशिश करेगा with those charged with governance the circumstances that lead to the expected modification and the proposed wording of the modification to ensure compliance with SA 705. तो हम क्या बोलते हैं that when the joint auditor expect to modify the opinion in the auditor's report, जहाँ पे when the joint auditor expect to modify the opinion, जहाँ पे जॉइंट ऑडिटर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें मॉडिफाई करना है ओपिनियन को इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो जॉइंट ऑडिटर शैल कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस द सर्कमस्टेंसेस दैट लीड टू द एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन एंड द प्रपोज्ड वर्डिंग ऑफ द मॉडिफिकेशन टू इंश्योर द कंप्लायंस विद SA 705. If the joint auditor expect to include an OM para in the auditor's report, the joint auditor shall communicate with the TCWG regarding the expectation and the proposed wording of this para to ensure the compliance with SA 706. उसके बाद आता है हमारा that basically हम बात करते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज क्वेश्चन नंबर 5. तो यहीं पे डिस्कस करते हैं ताकि हमें बेटर क्लैरिटी हो अबाउट द क्वेश्चन एज वेल. तो 4 ऑडिट फर्म थे विज GPR एंड कंपनी, MKS एंड कंपनी, CY एंड एसोसिएट एंड डी, मतलब 4 फर्म है, 4 ऑडिट फर्म है. तो 4 ऑडिट फर्म है, हम नाम इतने अजीब दे रखे हैं कि इसको मौके भी कैसे. हम बोल रहे 4 ऑडिट फर्म है जैसे कि GPR एंड कंपनी है, MKS एंड कंपनी है, CY एंड एसोसिएट है, DES एंड एसोसिएट है. चार ऑडिट फर्म है. तो हम क्या बोल रहे हैं, 4 ऑडिट फर्म है. They have been appointed for conducting the statutory audit of KNB. चारों ऑडिट फर्म जो है मिलके तो एक ही काम करिए, वो जॉइंट ऑडिट करिए. बेसिकली एक KNB बैंक है, 4 ऑडिट फर्म्स है वो एक बैंक की ऑडिट कर रही है, वो जॉइंटली कर रही है, इसका मतलब तो यही है. उसके बाद अ पब्लिक सेक्टर बैंक इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करके 4 फर्म जो है, 4 ऑडिटिंग फर्म जो है एक बैंक की ऑडिट कर रही है. The professional work was divided by audit firm. Oh God, ये क्या है? जो प्रोफेशनल वर्क है that was divided by audit firm. जो प्रोफेशनल वर्क है वो डिवाइड किया गया ऑडिट फर्म के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स ऑफ बैंक. However, work relating to IT system and control was not allocated by them to its very nature. जो प्रोफेशनल वर्क है वो डिवाइड हो गया बाय ऑडिट फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स ऑफ बैंक. जोन्स ऑफ बैंक के जो बैंक के जोन्स है उसके हिसाब से डिवाइड हो गया है वर्क. However, work relating to IT system and control was not allocated by them due to its very nature. तो IT related उन्होंने नहीं किया. While planning for the above common work area, it was decided to test the IT general control, application control, and IT dependent control. Planned the key audit procedure relating to this common area also included the testing, design, and operating effectiveness of control over the computer operation, including the backup, batch processing, and data center security. जो actual audit procedure है pertaining to test control over the batch processing were performed by team of this BES and associates
In case of work in relation to above audit procedure is not performed professionally by DES and associate discuss where responsibility for such a lapses would lie in line with ऐसे this. तो यहाँ पे हम लेकिन पॉइंट को डिस्कस करेंगे. जॉइंट ऑडिटर तो है बट प्रॉपर हमें समझ तो नहीं आया है कि कौन से पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा. तो इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन एरियाज के रिस्पेक्ट में जब कॉमन एरियाज की बातें की जाती है तो हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था उसी से रिलेटेड है. तो जॉइंट ऑडिटर आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एनटीए ऑफ द प्लान ऑडिट प्रोसीजर एग्रीड अमंग दैम. The responsibility of individual execution lies on the concerned joint auditor. In the instant case, audit procedure relating to the testing, design, and operating effectiveness of control over computer operation, including the backup, batch-up process, and data center security, have been planned jointly as it is a common work area. तो ये जो सारी चीजें उसे एज अ कॉमन एरिया में कंसिडर करके उससे उसमें डाला गया. तो however audit procedure relating to test control over the batch processing were actually performed by अगर वो कोई particular perform टीम करी although these were planned jointly. उससे प्लान तो किया था जॉइंटली बट अगर फिर भी कोई एक ही फॉर्म उसे परफॉर्म करी इन केस ऑफ एनी लैप्सेस इन परफॉर्मिंग सच डीई एज एन एसोसिएट वुड बी रिस्पॉन्सिबल. तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी. तो हम क्या however audit procedure relating to test of control over the batch processing were actually performed कर दिया पर्टिकुलर although these were planned jointly. इसे प्लान तो किया था जॉइंटली बट उसे किसी पर्टिकुलर फॉर्म ने ही परफॉर्म कर लिया. जॉइंटली परफॉर्म करने की जगह इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही परफॉर्म कर दिया है. इन केस ऑफ लैप्सेस इन परफॉर्मिंग सच प्रोसीजर अगर फिर ऐसा हुआ है तो फिर वो वही रिस्पॉन्सिबल होगी जिसने उसे परफॉर्म किया है. तो जॉइंट ऑडिटर का बस ये क्वेश्चन है फिफ्थ वाला जो कि हमने पढ़ लिया है अभी. उसमें ऐसा कुछ इतना डिटेल पॉइंट नहीं था कि जो एग्जाम में पूछ लिया जाए. एक और क्वेश्चन है जॉइंट ऑडिटर से रिलेटेड होप सो. एक और क्वेश्चन है थियोरेटिकल क्वेश्चन का फर्स्ट वाला. उसमें बोला जा रहा है कि एबीसी A, B and C जो है वो joint auditor है of a company. B is of the opinion that there are material misstatement in the financial statement of a company which if accounted for would turn the profit reflected in the financial statement from for 25 crore to a loss of 5 crore. And he therefore want an adverse opinion to the express in audit report. However, A and B do not concur with his view and incline to accept the management's version. Is B required to go by majority opinion of 2/1? बी को ऐसा ऐसा लग रहा है और बी को ऐसा ऐसा लग रहा है बट मुझे लगता है इसमें सेंटेंस में कोई गलती हुई है. बट बी तो चाहता है एडवर्स ओपिनियन बट ए एंड बी डू नॉट कॉन्कर. तो मेरे हिसाब से यह होना चाहिए ए एंड सी डू नॉट कॉन्कर विथ हिज व्यू एंड इंक्लाइन टू एक्सेप्ट द मैनेजमेंट विजन. इज बी रिक्वायर्ड टू गो मेजोरिटी बाय 2/1 ओपिनियन. क्या ऐसा होना चाहिए? So where the joint auditor are in disagreement with regard to the opinion of any matter or covered by the audit report, they shall express their opinion in a separate audit report. अगर उनका disagreement हो रहा है आपस में वो एक uniform opinion नहीं दे पा रहे हैं तो they shall express their opinion in a separate audit report में वो अपनी opinion express करें. A joint auditor is not bound by the views of the majority of the joint auditor पे ऐसी liability नहीं कि वो majority के साथ चले regarding the opinion or the matter to be covered in the audit report and shall express opinion formed by the said joint auditor in a separate audit report in case of disagreement. Therefore, B is not required to go by majority. उसे majority की opinion में नहीं जाना है 2/1 नहीं. वो अपनी separate opinion दे दे एक separate audit report में. In such a circumstances, the audit report issued by the joint auditor shall make a reference to a separate audit report. तो joint auditor में एक joint audit report में एक reference दिया जाएगा कि there is a separate audit report issued by other joint auditor ने दी है उसे there is a separate audit joint audit report में एक separate audit report reference दिया जाएगा कि there is a separate audit report which is issued by the other joint auditor. Such further separate audit report shall also make reference to the audit report issued by the other joint auditors.
सच अ रेफरेंस शैल बी मेड अंडर द हेडिंग, वो दी जाएगी ओएम पैरा 706 के अंदर, वो दी जाएगी ओएम पैरा ऐसे 706, ओएम पैरा ऐसे 706। बस इसके अलावा जॉइंट ऑडिटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। तो विद दिस मॉड्यूल में स्टडी मटेरियल में तो इतना ही दे रखा है, उसके अलावा अगर अनाउंसमेंट में दे रखा है तो वो नहीं कवर है यहाँ। तो with this we have completed essay 299 that is relating to the joint audit of the financial statement, कि कैसे हम joint audit करेंगे of the financial statement, joint audit of financial statement. So